پابندی کے باوجود اہم شاہراہوں پر رکشے رواں دواں، ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، 4 دن میں 60 مقدمات درج۔ ٹریفک سیکشن شارع فیصل نے 5 رکشے تحویل میں لے لیے۔ رکشہ ایسوسی ایشن کا پریس کلب کے سامنے احتجاج، رکشے کھڑے کر کے ٹریفک بلاک کر دی۔ حکومت سے رکشوں پر پابندی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ہمارے افسران بالا جیسے ڈی آئی صاحب ٹریفک ہیں اور کمشنر صاحب کراچی کے حکم کے مطابق جو رکشے آتے گئے ہم لوگوں نے کارروائیاں کی ہیں، ایف آئی آریں کٹائی ہیں۔ اب مزید بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کیونکہ مزید دیکھنے میں زیادہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہیں اسی لیے کیونکہ رکشہ نہ نکل جائے ہمارے ہاتھوں، لیکن رکشے آ نہیں رہے ہیں پیچھے سے۔ باقی یہ کارروائیاں کی ہیں، ایف آئی آریں کٹائی ہیں، 6 7 8 ایف آئی آریں ہوئی ہیں، اور یہ رکشے دیکھیں ابھی بھی رکشے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی بنا پہ تو اصل میں ایک تو یہ پرابلم کرتے ہیں کیونکہ یہ جب جگہ جگہ روک لیتے ہیں رکشے، اس میں بھی ٹریفک کی روانگی میں بڑا فرق پڑتا ہے اور خلل آتا ہے۔ اس لیے ہمارے افسران بالا نے یہ دیکھتے ہوئے ان پہ سختی سے پابندی لگائی ہے اور اس پہ عمل پیرا ہے۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے، کہ ہمارے ہاتھ سے یہ کہنا ہو کہ یہ کسی بھی ناجائز کام ہو جائے۔ ہم تو کوشش یہی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ بٹھاتے ہیں رکشے میں؟ یہ ویسے تو یہ سیٹوں کے حساب سے تو یہ 4 5 سیٹر ہی ہے، اور جبکہ اس پہ پابندی ہو گئی ہے۔ کمشنر کراچی کی طرف سے لیٹر بھی موصول ہوا ہے ہمارے کو، اس پہ کہی اور انشاءاللہ آئے گی کارروائی۔ شہر قائد ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، لیکن کئی علاقے پینے تک کے پانی سے محروم۔ لانڈھی نمبر 5.5 میں 10 برس سے پانی کی قلت۔ مکین کہتے ہیں کہ نئی لائنیں تو بچھا دی گئی مگر پانی پھر بھی نہ آیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہے لانڈی کا نمبر 5.5 جہاں ہائے پانی کی صدائیں۔ انتظامیہ نے لائنیں تو بچھا دیں لیکن مکینوں کو ایک بوند بھی پانی میسر نہیں۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ نلکوں میں پانی کے بجائے ہوا آتی ہے۔ بورنگ کا پانی بھی دور سے بھر کر لانے کا عمل سخت محنت طلب بنا ہوا ہے۔ نہیں آتا کبھی، پہلے آتا تھا تو سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ گیلن لے کے دوسروں کے دروازے پہ جانا پڑا۔ ان کے بیچاروں کے آتا ہے تو دے دیتے ہیں، نہیں آتا تو وہ بھی سوری کہ کیا ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ مکینوں نے دہائی دی کہ محکمہ پانی کے کنیکشن فروغ کرنے پر جتنی محنت اور لگن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنی توجہ اگر لائن سے پانی فراہم کرنے پر دیں تو 1 دہائی پرانی قلت آب کا مسئلہ فوری حل کیا جا سکتا ہے۔ گھنٹوں پانی نہیں آتا، مطلب گھنٹوں کیا دنوں پانی نہیں آتا، اور جو ہماری پرانی لائنیں تھی نا وہ ختم کر دی گئی ہیں، وہ پانی نہیں آ رہا اس میں۔ اور یہ ٹینکر مافیا ہے، وہ تو تمہیں پتہ منہ مانگے پیسے مانگ رہا ہے، اور یہ اپنا بورنگ کا پانی جو کڑوا پانی ہے یہ کہاں پینے کے لائق ہے؟ پینے کے لائق تو نہیں ہے۔ دوسری جانب شہر میں پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا، تاہم کئی علاقوں میں پانی کی قلت کے باعث عوام اذیت کا شکار ہے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد سے T21۔ شہر قائد میں ہیٹ ویو، گرم ہواؤں کے تھپیڑے، پھر کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ نے بھی رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائی۔ شہریوں کا قیوم آباد کے الیکٹرک آفس کے باہر سراپا احتجاج۔ بلدیاتی نمائندے بھی لوڈ شیڈنگ پر پھٹ پڑے۔ غیر اعلانیہ اور طویل دورانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں سورج سوا نیزے پر، پارہ 40 ڈگری تک پہنچا تو کے الیکٹرک نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دیں۔ کئی علاقوں میں طویل دورانیہ لوڈ شیڈنگ پر عوام کا بھی میٹر شارٹ ہو گیا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی کھٹک اور یو سی چیئرمین عبدالرحمان کی قیادت میں قیوم آباد کے الیکٹرک آفس کے باہر احتجاج۔ منتخب نمائندوں اور شہریوں نے دہائی دی کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا، عوامی کالونی، بلال کالونی، مہران ٹاؤن 17 سے 18 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی۔ کہ مزدور جس علاقے میں رہتے ہیں ان کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیتے، ان کو لاکھوں روپے کا بل دیتے، فیڈروں میں رد و بدل کرتے ہیں، کنڈا مافیا کے ساتھ یہ ملے ہوئے۔ غریب مزدوروں کا جو رات پر دن بھر مزدوری کرتے، رات کو ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ شہر میں ہیٹ ویو چل رہی ہے اور کیا الیکٹرک ہماری زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ آپ عیش کر رہے ہو، اسی کے اندر بیٹھ کر مزے لوٹ رہے ہو، آپ بل نہیں بھرتے، ہم بل دیتے ہیں 500 1000 کمانے والے یہ غریب لوگ
ये मजदूर लोग ये बिल देते हैं। एहतजाज के बाइस की इलेक्ट्रिक इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों के माबैन मुज़ाकरात और यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर की इलेक्ट्रिक ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। जिना अस्पताल के डॉक्टरों के एक ग्रुप ने मुतालबात पूरे न होने पर तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रखा। डॉक्टरों ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को ताले लगा दिए, जिससे निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। जिना अस्पताल में तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद, शरपसंद अनासर के खिलाफ मुकदमात। जिना अस्पताल में डॉक्टरों और मुश्तमिल तीमारदारों के दरमियान झगड़े, एक दूसरे पर मुकदमात दर्ज कराने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टरों के एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म कर दी, जबकि दूसरे ग्रुप ने शुरू कर दी। एडमिन ब्लॉक को ताले लगाकर एहतजाज किया। डॉक्टरों का मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पर मसला हुआ है वो मसला ये था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो आईसीयू में अंदर घुसे, उन्होंने डॉक्टर को मारा और उसके बाद जो है उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज पे एफआईआर हो गई। हॉस्पिटल के वार्ड में सिक्योरिटी ब्रीच होता है और सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर एफआईआर हो जाता है। होना ये चाहिए जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया उनके ऊपर एफआईआर हो। हमारे डॉक्टर्स जिनको यहाँ के अटेंडेंट ने मारा, उन्हीं के ऊपर एफआईआर हुई। ना ही वो जो बंदे थे पकड़े गए, ना ही एफआईआर ख़त्म हुई। एक हमारे वाईडीए पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो हमारे डॉक्टर के साथ खड़े हुए, उसके ऊपर आपने एफआईआर कटवाई। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसने 30-35 साल यहाँ पे दिए हैं, डॉक्टर जीशान। देखें, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमारी फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स के साथ ये हो रहा है। हमारी सिर्फ बेसिक डिमांड्स है कि हमारे डॉक्टर जिनके साथ ये सलूक हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उनके खिलाफ ही एफआईआर कटवाई गई है, तो वो एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है, ये गुंडागर्दी की है, उनको फ़ौरन अरेस्ट किया जाए। तब जो डॉक्टर्स हैं जो इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, पेशेंट्स के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके लिए, तो जब उनको ही सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर किस तरह से होगा। डॉक्टरों का कहना था कि अगर रात गए तक डॉक्टरों के मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर भर में रिटेलर्स ने आटे की सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। फ़ाइन और 2.5 नंबर आटा 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने 2.5 नंबर आटे की कीमत 70 रुपये और फ़ाइन आटे की कीमत 82 रुपये किलो मुकर्रर की है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रिटेलर्स ने आटे के सरकारी निर्खनामे को मुस्तरद कर दिया। मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन फरीद कुरैशी मुनाफाखोरों के दिफा में सामने आ गए। उनका कहना है कि मौजूदा माशी हालात में सरकारी निर्खों पर आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कम से कम 30 रुपए फी किलो मुनाफा मार्जिन दिया जाए। फरीद कुरैशी ने मुतालबा कर दिया, बताया कि कारोबार तभी चल सकता है जब मुनाफा हौसला अफजा हो और अखराजात पूरे हों। कम से कम हर बोरी के अंदर 2 किलो वजन कम हो जाएगा तो 140 रुपये वो हो गए और 200 रुपये वो हो गए। तो इसी तरह करते हुए रिटेलर को तो कोई प्रॉफिट नहीं है, वो उसको रेट पे कैसे उसको बांध सकता है। दूसरी जानिब शहरियों ने आटे की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। बोले हुकूमत निर्ख तो मुकर्रर कर देती है लेकिन अमल दरामद कोई नहीं कराता। अवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो महंगा आटा खरीदे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों पर कंट्रोल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दस्तगीर से लियारी नदी शाहराह जहांगीर पर बरसाती नाले की तामीर अवाम के लिए दर्द सर बन गई। केडीए के कॉन्ट्रैक्टर ने गुलशन इकबाल जाने वाली सड़क के एक ट्रैक को बंद कर दिया। बरसाती नाले के सरिये पूरी सड़क पर खतरनाक अंदाज में निकले हुए हैं। शहरी कहते हैं कि हिफाजती इक़दाम के फुकदान के बायस हादसात जन्म ले रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बी एरिया शाहराह जहांगीर पर बगैर हिफाजती इंतजाम और प्लानिंग के बगैर बरसाती नाले की तामीर ने शहरियों की जानो माल, वक्त और ईंधन को दाव पर लगा दिया। दस्तगीर ता लियारी नदी जगह जगह खतरनाक अंदाज में निकले सरिये और मुतबादिल रास्ते की अदम दस्तियाबी पहले ही शहरियों के लिए दर्दसर बनी हुई थी। ठेकेदार ने सड़क का एक ट्रैक बगैर इजाजत खोद दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। असल में उन्होंने पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक का पूरा उन्होंने ये अंडरग्राउंड जो बनाया है नाले का, ये तकरीबन काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और जो 5% का ये काम बचा है, यानी कि नाले से जो मिलाना है, वो इसलिए खोदा है वीकेंड पे
ताकि वो पिछला जो काम किया है उसका बिल पास हो सके। शहरी कहते हैं तरक्याती काम के दौरान हिफाजती इकदाम न होने से हादसात और ट्रैफिक जाम ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। मुसलमानों को तकलीफ हुई और जो भी ऐसे सरिये लगाए हुए कि उसको कोई भी हिफाजत नहीं कर रहा है, और जो भी गाड़ी रात को टाइम हो सकता है, कोई आ जाए अल्लाह ना करे, कोई भी हादसा हो सकता है, और सारा खड्डे लगे हुए। सड़कों की खुदाई और तरक्याती कामों के दौरान हिफाजती इकदाम न किए जाने पर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने से शहरियों को जानी और माली नुकसान समेत दीगर परेशानियों का सामना रहता है, जिसके खिलाफ फौरी इकदाम उठाए जाने की जरूरत है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। बताते चलें, सिंध काबीना की जानिब से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, साइट एरिया के फैक्ट्री मालिक का काबीना के फैसले पर रद्द-ए-अमल आ गया। फराज रफीक कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के बायस एक बड़ी सनत मुश्किलात से दुचार हो जाएगी। सिंध हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी फरमाए। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। प्लास्टिक बैग्स की पाबंदी का मामला, मिल्स मालिकान ने सूबाई हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। साइट एरिया प्लास्टिक बैग्स की फैक्ट्री के मालिक फराज रफीक कहते हैं, प्लास्टिक बैग की सनत पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत की हामिल है। सिंध हुकूमत के फैसले से फैक्ट्रियां बंद और लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आप जो माल इंपोर्ट करते हैं उस पर आपको टैक्स पेड है। आपके बिजली के बिल्स जो आ रहे होते हैं, 8-9 मिलियन के बिजली के बिल्स होते हैं, उस पर आप टैक्स पेड कर रहे होते हैं। और बाकी जितने आपके एक फैक्ट्री के अंदर मिनिमम 200 लेबर है एक फैक्ट्री के अंदर। उस लेबर के पीछे एक बंदे के पीछे चार अफराद हैं, वो अपने घर की कफालत कर रहा होता है। अगर खुदा न खास्ता ये बंद करते हैं तो भाई ये तो पूरे 10 से 12 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला शकील कहते हैं कि हम जो प्लास्टिक बैग्स बना रहे हैं ये माहौल दोस्त हैं। हम हुकूमत के दिए हुए ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो करते हैं और कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें मुतअद्दिद बार अवार्ड भी मिल चुके हैं। हुकूमत को अगर चाहती है, अगर इसको पाबंदी लगाना है तो उसके बेहतर उसमें और क्या हल क्या है? हमारे पास कोई हल नहीं है। शॉपिंग बैग के अलावा हमारे पास हल है कोई भी हल नहीं है। हमारे पास जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, आपका जहाँ पे भी देख लें, सुबह से लेके रात तक आप निकलते हैं बाहर, आपको क्या चीज़ मिलती? कागज़ में कुछ चीज़ नहीं मिलती, डिब्बों में कुछ नहीं मिलती, सारा काम थैली में चलता है। तो जितने भी चलाने वाले हैं वो भी तो उस पर रोजगार से परेशान होंगे बेचारे। माहौल को आलूदगी से बचाना है तो सिंध हुकूमत और माहौलियाती इदारों को मिलकर ऐसा लाहेअमल अपनाना होगा जिससे मजदूर बेरोजगार भी ना हो और ऐसा प्लास्टिक बैग तश्कील दिया जाए जिससे माहौल को नुकसान न पहुँचे और सनत भी बहाल रहे। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। खबर ये है कि सिंध के 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी जाएंगी। महकमा खजाना ने 5 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। किस ऑफिसर को कौन सी गाड़ी दी जाएगी, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध की ब्यूरोक्रेसी को पुरानी गाड़ियों से छुटकारा मिलेगा। अब डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी जाएंगी। नई फॉर्च्यूनर्स और रीवो खरीदी जाएंगी। महकमे खजाना ने रकम जारी कर दी। मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए की लागत आएगी। नई चमचमाती हुई गाड़ियां 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स के हिस्से में आएंगी। कमिश्नर्स के लिए फॉर्च्यूनर जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को रीवो डाला मिलेगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्कर की कमिश्नर्स के लिए फॉर्च्यूनर्स मुख्तस। जनूबी, गरबी, वस्ती, शर्की, मलीर और कोरंगी के अजला के डीसीज को डबल केबिन मिलेगी। बदीन, दादू, घोटकी, खैरपुर, ठट्टा और उमरकोट डिप्टी कमिश्नर भी शामिल। टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, शिकारपुर और सांगड़ के डीसीज को भी रीवो दी जाएगी। फॉर्च्यूनर 1 करोड़ 80 लाख रुपए, रीवो की मालियत 1 करोड़ 44 लाख रुपए है। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी, MQM पाकिस्तान के मुजाहिद रसूल और निगहत मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। स्क्रूटनी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, नहरों के मामले पर बातचीत ही होगी। उन्होंने नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह और मुसद्दिक मलिक के बयानात पर अफसोस का भी इजहार किया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। सिंध सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर ने पीपल्स पार्टी के आसिफ खान, वकार मेहदी और MQM पाकिस्तान के मुजाहिद रसूल और निगहत मिर्जा के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दिए। स्क्रूटनी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने विफाकी हुकूमत की कनाल मंसूबे के मुतालिक कहा कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान के पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म भी चाहें तो कनाल की मंजूरी नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी पर मौक़िफ़ तब्दील करने के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। हमने कभी भी किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमने कभी भी कोई नरम रवैया नहीं अपनाया। तो ये मैं PMNL के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल लें कि अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे और किसी तरह हम कैनाल्स में मान जाएंगे, किसी सूरत में कैनाल्स को हम नहीं मानेंगे। किसी सूरत में मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे
कि वो कैनाल के मंसूबे को रद्द करें, और रद्द करने के हक में अपनी बात करेंगे, हम उनको सबूत देंगे, हम डेटा पेश करेंगे उनके सामने कि जो बात आप कह रहे हैं वो सरीहन गलत है। एमकेएम के उम्मीदवार मुजाहिद रसूल और निगत मिर्जा ने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी वो मुकाबला करेगा। फैसल वावडा आजाद हैसियत में सेनेट का हिस्सा हैं। इन्होंने शिकवा किया कि सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना बुनियाद पर नहीं हो रही। वो एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट हैसियत से लड़े तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद अदा करेंगे कि उनके कैरेक्टर में या जहाँ पे भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो उसको कंसीव किया हुआ है उन्होंने, और वो जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं उसका पार्टी से हमारी एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं। दिन में तो वैसे ही पानी की कमी है और गैर मुनसिफाना तकसीम भी है, ये भी एक पहलू है। तो बहरहाल ये है कि ये चीज़ें जो बयानबाजियों के हद से बाहर निकलनी चाहिए, संजीदा किस्म की कमेटियाँ बननी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 अप्रैल तक कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए जा सकते हैं। 26 अप्रैल को उम्मीदवार की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी और 28 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं, जबकि सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग 6 मई को सिंध असेंबली में होगी। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सा शाइस्ती, 21। महकमा बल्दियात के 20,000 से ज़ायद मुलाजमीन के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार ने शिकवा किया, बोले 2017 से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजबात नहीं मिल रहे, गैर इंसानी सलूक फौरी ख़त्म किया जाए। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी एमकेएम पाकिस्तान ने अदालत से रुजू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी। पटिशन वजारत बल्दियात KMC, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, KDA, वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान के खिलाफ दर्ज कराई गई है। फारूक सत्तार ने वाजिबात की अदम अदायगी की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले 2017 से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को अब तक वाजिबात नहीं मिले। 14 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आखिर ये रकम कहाँ गई? 12,000 लोग हैं जिनके 14 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। 12,000 लोगों के 14 अरब रुपए KMC या TMC टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास हैं, वाजिबुल अदा हैं। जो दिए नहीं हैं वो खा गए, हड़प कर गए, ये वो जाने, उनका ईमान जाने। लेकिन ये 14 अरब 12,000 मुलाजमीन को देने हैं। फारूक सत्तार के मुताबिक KMC के 12,000, वाटर बोर्ड के 5,000 और KDA के 1,000 मुलाजमीन को उनके वाजिबात की अदायगी नहीं की गई। हत्ता के 40 साल की मुलाजमत के बाद भी रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात से महरूम हैं। वाटर बोर्ड के 5,000 मुलाजमीन हैं और उनके कमोबेश 5 अरब रुपए हैं। 5,000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए। इसी तरह KDA के 1,000 मुलाजमीन के 3 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। तो कमोबेश ये 18-20 हज़ार मुलाजमीन का मसला है। एमकेएम के सीनियर रहनुमा ने वाज़ेह किया कि अदालत ने मेयर कराची और सेक्रेटरी बल्दियात की रजामंदी से ईद से कबल अदायगी का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उनका मुतालबा है कि बेवाओं और शदीद ज़रूरतमंद खानदान के केसेस को फर्स्ट ट्रैक पर चलाया जाए। नाजरीन, अफसोसनाक खबर है कि मारूफ पाकिस्तानी शेफ़ ज़ाकिर इंतकाल कर गए हैं। शेफ़ ज़ाकिर अमरीका में मुकीम थे, 1 माह पहले पाकिस्तान आए थे। आपको बताएं कि मारूफ पाकिस्तानी शेफ़ ज़ाकिर इंतकाल कर गए हैं। शेफ़ ज़ाकिर अमरीका में मुकीम थे, 1 माह पहले पाकिस्तान आए थे। इस हवाले से जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। मारूफ शेफ ज़ाकिर अब हम में मौजूद नहीं है। शेफ ज़ाकिर अमेरिका में मुकीम थे और 1 माह कबल पाकिस्तान आए थे, और जबकि शेफ ज़ाकिर गुर्दे के आर्जर में मुब्तला थे, डायलिसिस पेशेंट थे। और आज ये खबर सामने आई, आज शाम में उनका इंतकाल हुआ है, जिसकी तस्दीक उनके ख़ानदान के करीबी ज़राए ने की है। और इस वक्त अगर हम बताएं शेफ ज़ाकिर के हवाले से, ना कि उन्होंने पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने मुनफरिद और जायकेदार खानों से मुल्क का नाम भी रोशन किया, और दुनिया भर में उनके खाने खासे मकबूल और मशहूर हैं। पाकिस्तान में भी उनके बनाई गई जितनी भी तरकीब हैं खानों की, वो आज भी उतनी ही मकबूल है। मगर जैसे ही ये खबर सामने आई है तो उनके चाहने वालों की तरफ से अफसोस का इजहार किया जा रहा है, जबकि उनकी फैमिली अमेरिका में। जी राहील बेग, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।